Good morning students, class 8 chapter number 11 mensuration, exercise 11.3. In the previous video we have complete out exercise 11.3 up to question number 8. Now we start question number 9. In the question number 9, a road roller takes 750 complete revolutions to move once over a level road. यानी कि एक रोड रोलर बुश शेप इज सिलेंडर और वो एक रोड के अलॉन्ग मूव करता है और उसने जो कंप्लीट रेवोल्यूशंस लिए यानी कि जो उसने नंबर ऑफ राउंड्स कवर करे वो कितने हैं 750 एंड वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रोड. सो फर्स्टली वी डिस्कस कि हम इस रोड रोलर को एज अ रोड किस तरह कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इट इज अ रोड रोलर and it is a road roller and suppose we put the road roller on the road. Now it take a complete revolutions, so we observe that its curved surface area जो इसका कट सरफेस एरिया होगा यानी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, अगर वो एक राउंड लगाता है तो उसका जो कट सरफेस एरिया है वो इतना एरिया कवर करेगा एक राउंड में. इट्स मीन एरिया कवर्ड इन वन राउंड इज इक्वल टू कट सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर. सो वी कैन फाइंड आउट फर्स्टली कट सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर. इट्स मीन कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. Cut surface area of cylinder 2 pi RH. It means 2 value of pi 22 by 7 R 0.42 into H 1 meter 0.06 44 multiply 0.06 and there multiply 6 4 जा 24 6 4 जा 24 और 2 6 यानी कि 264 but there are two digits after decimal, so 2.64 meter square. So it is the area covered by road roller in one revolutions यानी कि one revolution यानी कि one round, but the taken number of revolutions is equal to 750. So total area covered in 750 revolutions. अगर वो 750 राउंड्स लगाता है तो कितना एरिया कवर करेगा? सिंपली 750 मल्टीप्लाई 2.64 एंड आफ्टर मल्टीप्लाई वी फाइंड आउट एरिया इन मीटर स्क्वायर. यू कैन फाइंड आउट वेरी इजिली एंड इट इज द एरिया ऑफ रोड. I sure the question number 9 is clear. Just note down. Okay students, now we discuss question number 10. In the question number 10, a company packaged its milk powder in cylindrical container whose base diameter is 14 centimeter, its mean radius 7 centimeter and the height is 20 centimeter. Company placed a label around the surface of the container. कंपनी उस सिलेंडर कंटेनर चाहता अपने एक लेबल लगाती है, बट जो लेबल वो पेस्ट कर रही है वो 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम. यहाँ पर गैप है 2 सेंटीमीटर इन द टॉप एंड 2 सेंटीमीटर इन द बॉटम. इतने गैप को छोड़कर वो लेबल लगा हुआ है. सो वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द लेबल. Simply the label is placed on the cut surface area, so cut surface is equal to area of the label. But in this question it is a problem कि जो लेवल का हमारे पास डायमेंशन है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो गई. इट्स मीन उसने टोटल कट सरफेस एरिया को कवर नहीं करा. यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा गया है एट द टॉप एज वेल एज इन द बेस. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट एरिया ऑफ द लेवल? फर्स्टली अगर हम इस लेवल को कंसीडर करते हैं एंड वी ओपन द लेवल देन इट शेप लाइक अ रेक्टेंगल. It's clear. But in this question when we open it, its shape a rectangle and its length is equal to 2 pi r. But
its breadth not equal to 20 centimeter, because there is 2 centimeter margin in the top and bottom, so its breadth convert into 20 minus 4, it means 16 centimeter. So area of the level may be considered as, it means जो हमें required area चाहिए, required area, its length is fixed, its length is circumference of the circle 2 pi r, but it is the length, but breadth of the level may be changed. अगर वो कंप्लीट एरिया को कवर करती तो ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, बट इन द क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर मार्जिन इज गिवन इन द टॉप एंड बॉटम, सो इट्स ब्रेथ इज कंसीडर एज 16 सेंटीमीटर. Now put the value pi 22/7 and the r 7 multiply 16, तो 44 multiply 16, 16 multiply 44, 64 407, it means 704 centimeter square. It is the area of the level. So I sure the question is clear, just note down. Okay students, now we discuss volume. Volume of solid bodies, cuboid, cube and cylinder. वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला भी स्टडी, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि बेस का एरिया और हाइट की मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बॉडी. तो फर्स्ट डिस्कस क्यूबाइड. क्यूबाइड हैव 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड इट्स वॉल्यूम, एरिया ऑफ द बेस, इट्स मीन L मल्टीप्लाई B एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो इट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड. क्यूब, area of the base obviously a square into height, which is also a, तो a raised to the power 3 unit की power 3. cylinder, area of the base which is circle, it means pi r square into height यानी कि h, तो pi r square h unit की power 3. So these are the formulas of volume of a solid bodies. So I sure the formula is clear, just note down. Okay student, now start exercise 11.4. 11.4 first question, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume. Here are given some situation, तो हमें ये कंसिडर करना है कि हम किस सिचुएशन में वॉल्यूम कंसिडर करेंगे और किसमें एरिया. जहां पर भी कैपेसिटी का जिक्र होगा, किसमें कितना मटेरियल हम फिल कर सकते हैं, इट इज कंसिडर वॉल्यूम. एंड व्हेन वी डिस्कस इट्स सरफेस, कि वो कितने मटेरियल से बना है या मुझे उस पर पेंट करना है उसकी सरफेस पर, तो कितना खर्चा आएगा, उस कंडीशन में यूज करते हैं सरफेस एरिया. इन द ए पार्ट टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, हमें ये फाइंड करना है कि वो अपने अंदर कितना मटेरियल होल्ड कर सकता है, इट्स मीन वी हैव टू कंसीडर वॉल्यूम. सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, अगर मुझे इस पर प्लास्टर करना हो, यानी कि मुझे उसकी सरफेस को प्लास्टर से कवर करना है, सो वी फाइंड आउट इट्स सरफेस एरिया. एंड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, वो स्मॉलर टैंक्स की काउंटिंग बतानी है, उनकी काउंटिंग बतानी है, इससे उसको पानी से भरा जा सके. यहाँ भी हमें फिल करने की जरूरत है, इट्स मीन वी हैव टू कंसीडर इट्स वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमारे पास 2 सिलेंडर हैं एंड देयर डायमेंशंस आर गिवन. इट्स रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर. इट्स क्वेश्चन इज, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर. हमें यह सजेस्ट करना है कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर हो सकता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन. In these two cylinder we observe that कि its height is double of its height, यानी कि height of A is double of height of B and radius of B
इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ ए। यानी कि यहां पर क्या है कि हाइट तो इसकी डबल है और रेडियस उसकी डबल है, तो हाउ कैन से दैट कि वुड्स वॉल्यूम इज ग्रेटर। वी नो दैट वॉल्यूम सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। इट्स मीन जो वॉल्यूम पर इफेक्ट डालता है, हालांकि यू दो डायमेंशन होती है, रेडियस भी और हाइट भी, बट बिकॉज इट कंटेन पावर टू, सो वी कैन से दैट एरिया जो रेडियस है वो वॉल्यूम पर ज्यादा इफेक्ट डालता है, यानी कि उसकी वैल्यूज पर वो ज्यादा इफेक्ट अपना शो करता है। सो वी कैन से दैट बिकॉज रेडियस ऑफ बी इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ ए, सो without any calculation we suggest that its volume may be greater than in compare of this, क्योंकि उसकी रेडियस डबल हो रही है, रेडियस ज्यादा इफेक्ट डालती है वॉल्यूम पर, सो अकॉर्डिंग टू अस इट्स वॉल्यूम इज ग्रेटर। एंड इट इज ऑल्सो गिवन कंसिडर दैट कि आपको आंसर वेरीफाई करना है दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करके, सो वी फाइंड आउट देयर वॉल्यूम्स। तो हमने यहाँ पे दो कॉलम बनाए, फॉर द फर्स्ट कॉलम सिलेंडर ए एंड द सेकंड कॉलम सिलेंडर बी। सिलेंडर ए, इट्स रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 14 सेंटीमीटर, सो इट्स वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई 3.5 होल स्क्वायर इंटू 14, पाई 3.5 होल स्क्वायर, इट्स मीन 12.25 into 14, and we now multiply them, but in the cylinder B radius 7 centimeter and the height also 7 centimeter, so its volume pi r square into h, pi into 49 into 7, it's mean 343 pi centimeter cube. Now we have to calculate 12.25 multiply 14. Multiply by 4, 0, 0, 9 and 4. 5 2 2 1 0 5 1 7 1, it's mean 171.50. again repeat, okay, तो its volume is 171.50 pi centimeter cube. So we can say that volume of B is greater than volume of A. Clear? Okay. In the next part आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि किसका सरफेस एरिया ग्रेटर होगा। So we have to calculate their surface area. Surface area mean we have to calculate total surface area. Total surface area 2 pi r plus h. It's mean 2 pi into 3.5 in a bracket 3.5 plus 14. It's means 7 pi and in the bracket 17.5. So 7 multiply 17.5 into pi centimeter square. In the cylinder B, total surface area formula same 2 pi r plus h. So 2 pi into 7 plus 7. It's mean 14 pi into 14. 196 pi centimeter square, and now we have to calculate 17.5 multiply 7. 49 and 3 52.
तो 12.25 यानी कि 122.5। सो फाइनली वी ऑब्जर्व दैट सरफेस एरिया भी बी का ही ग्रेटर है इन कंपेयर ऑफ ए। सो आई श्योर क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर। Just note down, in the next video we continue exercise 11.4. Thank you very much.